Association. And Sandeep Dive, current world champion, and Jait Faruqi of Tana is also an international player. Happy to announcement All is 14th set. Shivaji Park Left-handed Gymkhana Jait State Ranking Faruqi. Kadam Tournament 2022-23. Quite a good Hosted track by record. Shivaji Many Park of the Gymkhana street ranking under the tournaments have been aegis won of by NCA Jait and Faruqi. Yogesh Sandeep Dive, Singhal of course, Association. Venue is Shivaji not Park lagging Gymkhana, behind. Dadar West, More than Mumbai. that, he has Date of played 10 Feb to national and 12 Feb international level and 23. winning Event main that single final prestigious match world as between championship Sandeep Ashok Dive, few months Mumbai back. Sagarkhan versus And Zaid Ahmad here we Faruqi of go, Thane. start of the final of Was this won by prestigious 14 Zaid Shivaji Ahmad Park and elected to Gymkhana take first seat of first break score organized award. set ranking carom tournament 2022-23. All is set Yes, play. and start of the match. First strike. Sandeep Dive pocketing black. Oh, hitting hard is Sandeep Dive. Jai Ahmed. Oh, missing that first thumb. Sandeep Dive. Cut and release. Oh. Jait Faruqi. Missing that. Releasing the white towards his end is Sandeep Dive. And now Jait. One white. Jait. What a release of queen this by Jait Faruqi. Pocket in but missing that, giving an opportunity to Sandeep. Rebound for the queen. Perfect pocketing. Confirmation done with this black. Connection. Pressing that white. And one more. What a shot. Now the last black to be pocketed. Oh, hook shot attempted and missed. Faruqi, Jait, Sonu Nigam, Sonu he is affectionately called. Pocketing two going for the third. And what a pocketing it is. Cut and releasing the black. What a shot. Bound last coin, not giving any chances. Playing exceptionally well this time is Jait Faruqi. But what a cut by the world champion. What a way to start his scoring. Sandeep Dive. And he's pocketing cleanly and neatly. So to start with, Sandeep Dive, that is scoring with 4 points. First board, first strike after the end of the one. 4 love the score. Sandeep Dive to strike. Officiating umpires, Gautam Jadhav, national umpire, and Arvind Narkar officiating this match.
Then we have tournament director, respected Sri Arun Kedarji, tournament secretary Sri Yatin Thakurji, chief referees are Ashish Bakkar and Ketan Chikle. In the meanwhile, we see Sandeep Dive striking. Good one. Good cut. Another wide but misses this time. Had good opportunity for Queen as well, but Farooqi hitting hard, trying to remove that white. Sandeep pockets the white. One more white. No. Glance maybe there. Yes. Good glance. Pocketing the black. Lot of blacks along with the queen. Releasing white, but what a confidence Sandeep Dive has. Rebound shot perfection. Single black expected. Yes, no mistake. Removing the white, she's blocking his pocket, releasing that white. Again Jayed will be removing from that pocket. Release by Sandeep, pushing the white inside, just behind the black. Pushing short circle, removing the black. Putting the block of black by Jayed Ahmed, not giving free chance to Sandeep Dive whatsoever. Sandeep, rebound, releasing white again. Jayed may put it back, that white. Again one more block. Slow start. Sandeep tempting a rebound, or he's going to drop it. Prefer to drop and block the pocket for Jayed. Sandeep. Dropping the white, not taking any chance. Double attempted by Sandeep. Missing, and this is a real chance for Jayed Ahmed now. Confirmation done. You're going to play single or a cut. What a shot! Good. Jayed. Uppercut, straight in the pocket, and last one to be pocketed, and he pockets it confidently and levels the score after the end of the second board for each. What a match! We'll be having a nail-biting finish over here in the finals, because both the players matching each other in all respect of the game. But current world champion Sandeep Dive slightly having an upper hand, though, but Jayed Ahmed will not let him lose
not offering any chances. So we see third board of the first set. After the end of the two, it's 4 all level. Jahid Farooqi to strike. Yes, play. Good one. Hip straight. Cut for white. Pocketing easily. Rebound. Perfection is the only word after seeing that pocketing. White to white connection for thumb. Nicely executed. And the center queen to be pocketed. He decides for that. And putting it straight in the pocket is Jahid Farooqi. And pocketing that confirmation. Cut to that pocket. This is really a good show by Jahid Farooqi, not missing any straight coin. This is the third one and last one to be pocketed. He takes the pause. And he pockets in style, and first white slam of this final by Jahid Ahmed Farooqi, not giving any chances to the world champion, current world champion Sandeep Dive. Excellent show, and what a stylish play this is, and clinching the board of 12 points in the third break is Jahid Farooqi marching ahead. He leads by 16-4, and it's fourth board 4 against 6. with Sandeep Dive to strike. Fourth board, Sandeep Dive has to really show his 100%. This is a good one. Good strike by Sandeep Dive. Good one. Oh, this is a miss. Otherwise, he would have tried for that white slam. All open were there. Jahid pocketing cleanly. Trying for that gap. Black. Oh, what a shot. Pocketing white. Nice connection, blocking two blacks. Now to release the cluster and open queen and the two whites is what is expected. Yes, he does. Yes, he does. Now Jahid has to really think before losing his turn. Pockets one. Going for the second. Definitely go for straight black. Good stroke. Pocketing this. What a shot it would have been, but he misses that, giving opportunity to Sandeep. Sandeep pockets it well. He's going for that pushing shot. Connection, white to white, and the last coin to be pocketed. Oh, he missed it. He missed it. Jahid Ahmed pocketing one. Border miss and offering Sandeep Dive one more board. Two black caramel on the board. 7 points, and now the score is 16-9.
After the end of the fourth board, it's First set of 16-9 in favor of Jait Farooqi. First set, score fifth 16 board to against start. Once again, those who have tuned in late, the 14th Shivaji Park Gymkhana State Ranking Carom Tournament 2022-23 hosted by Shivaji Park Gymkhana under the aegis of Maharashtra Carom Association and Mumbai District Carom Association, which is sponsored by Saraswat Bank, is being played at Shivaji Park. We are watching exciting final between the world champion Sandeep Dive and Jait Farooqi, the international player. Evenly poised match. 16-9 the score, and Shivaji Park has been organizing this tournament regularly, and their chairman Deepak Murkar, the secretary Sanjeev Khanolkar, their joint secretary Sunil Ramchandran, and indoor sports secretary Sri Vijay Alvada officials. They are the force behind this organization of this prestigious carom tournament. All the 9 white on the board. Oh, Mrs. Sandeep. Cut. That is the one of the rare miss by Jait Farooqi. What a shot, hook shot. Good one. What a shot again. And now it will be connection, white to black. Oh, just miss. Just miss. Right, pocketing, or is going for the hard hit rebound which may release that black towards his base. Good shot, and solid display of pocketing by Jait. Cut and release of the next one. Yes, but miss. Now Sandeep may again glance and try to pocket that punch. Black. What a punch there. So confident Sandeep Dive with 3 white caramel on the board, and now it's a very close match. After the end of the 5th board, the score reached 16-15 in favor of Jait Farooqi. 16-15, tight match. Game of now. Patience is tested, perseverance is tested, and concentration, lot of concentration required. Talent all has, but overcome the pressure, not to succumb to the pressure. Sandeep Dive strikes, good break. Following, putting that white pocketing, missing by Sandeep. Jait. What is he going to do the next? Double, perfection. The cutter.
Good attempt. Good one by Sandeep. White to white connection, not executed, but Jade pocketing one. What is he going to do the next? Oh, lovely. That's a good shot for pocketing that queen. After confirmation, pocketing steel goes on. What a shot. Simply brilliant. And this last one also is pocketed by Zaid Farooqi confidently, and it is game chance and taken the first set. थैंक यू किशोर सर। और फिर एक बार महाराष्ट्र कैरम एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए सभी खिलाड़ियों का, दर्शकों का और कैरम प्रेमियों का मैं मंदार दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और सीधे ले चलता हूं 14वीं महाराष्ट्र राज्य चैंपियनशिप जो शिवाजी पार्क जिमखाना में यहाँ पर लास्ट 3 दिनों से चलती है, इसके जेंट्स फाइनल में जहाँ पर 2 दिग्गज खिलाड़ियों के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ संदीप दिवे वर्सेस जाहिद फारूकी। और मैं बताना चाहता हूँ संदीप दिवे जो प्रेजेंट वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर है और जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए फाइनल में प्रवेश किया है। हालांकि मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ठाणे डिस्ट्रिक्ट से खेलने वाले जाहिद फारूकी, जिसे प्यार से सोनू कर बुलाते हैं, ये खिलाड़ी बहुत ही फॉर्म में खेल रहे हैं और मतलब जिस तरीके से उन्होंने पहले सेट को जीता है काबिल तारीफ़ कहना होगा। और जिस तरीके से उन्होंने वाइट स्लैम खेला है वो भी, अगर मैं अभी जुड़े हुए दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप ज़रूर उस स्लैम को देखिए। हालांकि यहाँ पर देखिए फिर एक बार सेकंड सेट की शुरुआत हो चुकी है, जहाँ पर पहले ब्रेक को आगाज़ किया है। यहाँ पे देखिए क्वीन का कनेक्शन खेलने की कोशिश और लाजवाब पोजीशन खेलते हैं, और ना ही सिर्फ पोजीशन खेलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन के साथ उसे अंजाम देते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ सोच समझकर खेलना होगा सोनू को, मतलब जाहिद को। और जाहिद देखिए किस तरीके से धीरे धीरे एक उन्होंने शॉट देख के रखा हुआ है, लेकिन उसके पहले उनको एरो की जो ब्लैक है उसे खेलना होगा। हालांकि ऐसे ही होता है, हम जब सोचते हैं तो ज़्यादा कॉशियसली खेलते हैं और उस वक्त हमारे से कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं है। बहुत बेहतरीन टर्न खेला है आफ्टर द ब्रेक ऑफ संदीप दिवे। यहाँ पर संदीप को पोजीशन को थोड़ा सा चेंज करना होगा ज़रूर, नहीं तो फिर नेक्स्ट टर्न जो है वो थोड़ा सा नुकसानदेह टर्न हो सकता है संदीप के लिए। डेफिनेटली उनको क्लस्टर को ब्रेक करना ही होगा और भाग्यशाली कह सकते हैं हम 2 ब्लैक कॉइन जो बुरी तरह फंसी हुई है जाहिद की, और देखने जाएंगे तो फिर एक ही वाइट कॉइन है जो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट दिखती हुई संदीप को। और इस बार देखते हैं, एक चांस है जहां पर इस ब्रेक को नहीं, लेकिन अब शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि जाहिद कुछ ना कुछ करेंगे ज़रूर। देखिए किस तरीके से हल्के हाथों से ग्लांस खेला है और एक वाइट कॉइन, ब्लैक कॉइन को उन्होंने इजी कर दिया, उसी कॉइन को खेला। अब यहाँ पर सिंगल हुक का प्रयास होगा और बहुत ज़्यादा जजमेंट लेने के बाद भी स्ट्रोक थोड़ा सा गलत लगता हुआ
थोड़े से नाराज ज़रूर दिखाई देते हैं। शायद यहाँ पर और एक चांस था जिसको कोशिश की थी ज़रूर संदीप ने, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। और ये परफेक्ट टर्न है जैद का। अगर यहाँ फोर्सफुली वाइट कॉइन अगर पंच होती है, नहीं, यहाँ अलग कोशिश थी, लेकिन अच्छा टर्न कह सकते हैं हम यहाँ पर संदीप का। अब देखिए कैसे फेवर में ले लिया है जैद ने इस ब्रेक को, और ये थर्ड पॉकेट खेलने की कोशिश, जिसमें कॉइन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती हुई संदीप को। 2 मिनट के लिए रुके जैद और सोच रहे हैं कि इस शॉट को देखते हुए मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि सेम ऐसी पोजीशन थी संदीप देवरुखकर को एक बार नेशनल के फाइनल में। क्या बात है, बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस शॉट के द्वारा उन्होंने एक मिडल फिंगर से थोड़ा सा टर्न खेलते हुए इस शॉट को थर्ड पॉकेट खेल लिया और बेहतरीन तरीके से 1 पॉइंट से इस ब्रेक को जीत लिया है। तो मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा जिस तरीके से जैद ने इस कॉइन को कट खेला था। एक बार संदीप देवरुखकर ने निशांतो फर्नांडो के अगेंस्ट इस ऐसे ही पोजीशन में इसी कॉइन को थर्ड पॉकेट खेला था, तो वो चीज़ मुझे रिकलेक्ट हो गई देखते देखते, तो मैं जस्ट शेयर कर रहा हूँ दर्शकों के साथ। तो यहाँ पर और उस वक्त मैं बताना चाहता हूँ कि संदीप देवरुखकर वॉज ऑन 21 पॉइंट वो टाइम पे, और निशांता जो था वो 24 पॉइंट पे थे। तो यहाँ पर देखिए फिर एक बार जैद फारूकी ने ब्रेक को आगाज़ किया है, लेकिन ब्रेक को सक्सेस नहीं कर पाए कॉइन को पॉकेट करने के माध्यम से। यहाँ पर 3 से 4 ब्लैक कॉइन जो ओपन पोजीशन में दिखाई देती हुई संदीप को ज़रूर पहले इस कॉइन्स को पॉकेट करेंगे। वेरी गुड, क्योंकि बहुत ही कम गैप में से स्ट्राइकर को बिना टच किए हुए निकालना था। अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से शायद थोड़ी स्टैंडिंग पोजीशन को ब्लैक को हल्के हाथों से खेलेंगे, क्योंकि वाइट को डिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए टच का प्रयास नहीं रहेगा, लेकिन कट हार्ड स्ट्रोक खेलते हुए थर्ड पॉकेट खेलने की कोशिश की। अब अगर इस पर्टिकुलर बोर्ड की हम सिचुएशन देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जैद को ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन दिखाई देती हुई, क्योंकि डेफिनेटली अभी क्वीन के लिए वो आगे चलेंगे। देखिए किस तरीके से क्वीन को पॉकेट कर लिया है, हालांकि एक इजी कवर उन्होंने सामने रखा हुआ है। अब शायद रिबाउंड की कोशिश या फिर शॉर्ट थर्ड पॉकेट जो भी है। ग्लांस ब्लैक, वाओ गुड। यहाँ पे देखिए कंट्रोल, इस पर्टिकुलर स्ट्रोक को परफेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हालांकि कोई खिलाड़ी इतना ज़्यादा परफेक्शन देना मतलब ये कभी कभार ऐसे हो जाता है कि ड्यू हो सकता है, क्योंकि स्ट्रोक गलत गया और यहाँ पे एडवांटेज मिलता है संदीप को। देखिए थोड़े से खड़े एंगल से वाइट को ओपन करेंगे और ब्लैक का रास्ता क्लियर करेंगे यहाँ पर ज़रूर। मैं बताना चाहता हूँ कि ये दोनों खिलाड़ी बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, और जिस तरीके से जैद फारूकी ने इस पहले सेट को जीता, तो संदीप दूसरे सेट को इतनी आसानी से जीतने नहीं देंगे, ऐसा मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं। अगर जैद को इस सेट को भी जीतना है तो ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेलना होगा। देखिए थंब को रखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर बॉम्ब का इस्तेमाल होगा। क्या बात है, वाइड एंगल है थोड़ा सा, लेकिन देखिए किस तरीके से यहाँ पर बैड लक कह सकते हैं। अब कोई चारा नहीं है ब्लैक को घुमाने के सिवा, ऐसा मुझे लग रहा है। या तो कनेक्शन खेलेंगे, दोनों में से एक। और क्या बेहतरीन कनेक्ट किया है इस कॉइन को, ये लास्ट कॉइन, और काबिल तारीफ फिनिश। इसे देखिए तालियों के बौछार आपको सुनाई देती होगी, क्योंकि सच में ये बेहतरीन फिनिश।
क्या होता है, आदमी सोचने के लिए बहुत कुछ सोच सकता है, लेकिन उसको असलियत में लेके आना और इम्प्लीमेंट करना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जिगर होने की बात होती है। तो यहाँ पर देखिए, एक्सपीरियंस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट यहाँ पर दिखाई देता है। तो जिस तरीके से निवाला छीन लिया है मुंह से संदीप के और 4 पॉइंट बना लिए हैं सेकेंड सेट के सेकेंड ब्रेक पर। यहाँ पर फिर एक बार उसी जोश के साथ संदीप ने थर्ड ब्रेक को शुरुआत किया है और हल्के हाथों से मेरे हिसाब से बम खेलेंगे, हल्के रिलीज करेंगे और मिस्टेक फिर एक बार अनएक्सपेक्टेड कॉइन मिस करना और उसकी वजह से कभी कभार थोड़ा सा नुकसान ज़रूर होता है खिलाड़ियों को। हालांकि दूसरे के गलतियों पे विजय प्राप्त करना यही अच्छी खिलाड़ी की निशानी है। गेम कोई भी हो, आप कोई भी गेम को देखिए, जब अपोनेंट मिस्टेक करेगा तब उस मिस्टेक को कैपिटलाइज करते हुए आपको जीतना है। दिस इज़ द रूल ऑफ एनी गेम। यहाँ पर एक अच्छी कोशिश, सर्कल की कोशिश है और इसकी वजह से पोजीशन, बहुत अच्छी कोशिश। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि संदीप इस पर्टिकुलर टर्न में गेम, इस बोर्ड को फिनिश करने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं इंट्यूशन हो रहा है। देखते हैं क्या होता है, क्या मेरा अंदाज़ा सही हो सकता है या नहीं। देखिए किस तरीके से हल्के हाथों से उस वाइट को इजी किया और यहाँ पर क्या बात है। अब अगर ये वाइट कॉइन पॉकेट करते वक्त सेंटर की ब्लैक को अगर उन्होंने रिमूव कर दिया, जिसकी कोशिश वो कर रहे थे लेकिन नहीं हो पाई, चलिए कोई बात नहीं है। अगर ऐसा हो जाता तो शायद फिनिश के लिए वो चाह सकते थे। यहाँ पर फिर एक बार ज़ैद कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम अपने ब्लैक कॉइन्स को बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ एक चांस था, फिर एक बार वही कोशिश है इस कट को खेलते वक्त लेकिन नाकामयाब कोशिश होती हुई बार बार संदीप साथ। यहाँ पर देखिए एक सिंगल ब्लैक खेलने का प्रयास और जिसे बहुत अच्छी तरीके से खेल लिया। फिर एक बार अब यहाँ पर देखिए क्वीन का प्रयास किया था ज़हीद ने और वहाँ पर फंस गए ज़हीद। चांस मिलता है संदीप को इस ब्रेक को फिनिश करने का 6 पॉइंट के साथ, अगर इस कॉइन को पॉकेट कर ले। और बहुत अच्छी तरीके से फिनिश कर दिया है संदीप ने, 6 पॉइंट्स बटोर लिया है इस पर्टिकुलर ब्रेक में। और इस 6 पॉइंट के साथ संदीप पहुंच गए हैं 7 पॉइंट पर, जहां पर 3 ब्रेक की समाप्ति हो चुकी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर सेकेंड सेट में जो स्कोर है वो स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ नज़र आता है। ज़ैद फारूकी 4 पॉइंट्स आफ्टर 3 ब्रेक्स। संदीप दिवे करंट वर्ल्ड चैम्पियन इज़ ऑन 7 पॉइंट्स। और देखते हैं चौथे ब्रेक की शुरुआत यहाँ पर होने जा रही है। हालांकि ये फाइनल का मुकाबला है और इस फाइनल में जीतने वाला टाइटल विनर होगा 2022-23 14 शिवाजी पार्क जिमखाना इस बेहतरीन प्रतियोगिता का। यहाँ पर क्या बात है, बहुत अच्छी तरीके से थोड़ा उन्होंने खेल लिया है प्रेस शॉट को।
अच्छी कोशिश, लेकिन अभी तक अगर इस बोर्ड की सिचुएशन हम देखते हैं तो दोनों खिलाड़ियों के लिए सेम पोजीशन दिखाई देती हुई, हालांकि किसी के लिए भी इतनी इजी पोजीशन नहीं है और यहाँ पर हर एक कॉइन को चुन चुन के खेलना होगा। दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि इस मैच में जुड़े रहिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जब जब ये एंडिंग में चली जाएंगी मैच तो आपके दिलों की धड़कनें ये दो खिलाड़ी ज़रूर बढ़ाएंगे। देखिए स्ट्रैटेजी देखिए, बॉम्ब को बिना कुछ खेले बॉम्ब को डिफ्लेक्ट कर दिया और अब शायद क्वीन को हार्ड ग्लांस करते हुए कनेक्ट करने की कोशिश होगी ज़ैद की। अगर ऐसा हुआ तो अगले टर्न में क्वीन उनको खेलने मिलेंगी। यस, परफेक्ट। और यहाँ पर क्वीन खेलेंगे ज़रूर, क्योंकि क्वीन की पोजीशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोजीशन होती है, जिसकी वजह से 3 पॉइंट मिलते हैं खिलाड़ी को। अब सिंपल हुक खेलने का प्रयास यहाँ पर दिखता है और बहुत अच्छी तरीके से पॉकेट के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आकर कॉइन ने डिफ्लेक्शन कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं है। देखिए अब यहाँ पर सिर्फ एक जो कॉइन है संदीप की, वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, तो उसे किस तरीके से रिलीज़ करेंगे, क्योंकि बाकी कॉइन्स को तो रिलीज़ कर सकते हैं उनके पास। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन। अब यहाँ पर अगर दोनों कॉइन चली जाती है तो कुछ हो सकता है। नहीं, उन्होंने हार्ड स्ट्रोक खेलते हुए रिबाउंड में खेलने की कोशिश की थी। जो रिबाउंड में उनकी ब्लैक है उसे खेलने का प्रयास किया था, लेकिन उसमें उन्हें सफलता नहीं प्राप्त होती है। यहाँ पर बैलेंस पे खेलना होगा या फिर टच पे। चलिए, ना बैलेंस ना टच, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी है संदीप को और मुझे लगता है कि वो रिबाउंड की कोशिश करेंगे, जहाँ पर राउंड पोजीशन में अगर कॉइन पास होती है तो ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। और फिर एक बार एक चांस मिलता हुआ ज़ैद को ग्लांस के माध्यम से दोनों चीज़ करने जाएंगे और काफ़ी हद तक उन्हें सफलता प्राप्त हुई है। यहाँ पर फिर एक बार कट और पंच की कोशिश होगी, जिसमें फिर सफलता मिलती हुई। क्या बात है, यहाँ काबिल तारीफ़ हम करना चाहेंगे ज़रूर ज़ैद फारूकी इस खिलाड़ी की, क्योंकि परफेक्शन देखिए, जिस कॉइन को खेल रहे हैं उस कॉइन को पॉकेट करते हैं। फिर एक बार तालियों की बौछार हमें सुनाई देती है और ये कड़ा मुकाबला, ये बहुत ही कड़ा मुकाबला चलता हुआ दो खिलाड़ियों के बीच में। कोई भी खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को कुछ ज़्यादा बड़ा बोर्ड देने के मूड में नहीं है और ना ही इस तरीके से कोई गलतियां वो करेंगे, क्योंकि फाइनल का मुकाबला है और इस मुकाबले में जीतने वाला खिलाड़ी टाइटल विनर होगा। ये जब कुछ ऐसा होता है तो एक हम बोलते हैं ना, इतिहास होता है, एक हिस्ट्री होती है। तो इस हिस्ट्री को बरकरार रखने के लिए, उस हिस्ट्री में अपना नाम जोड़ने के लिए वो ज़रूर कोशिश करेंगे कि जीत हमारी हो। देखिए किस बेहतरीन तरीके से इस ब्रेक को आगाज़ किया है और धीरे धीरे अंजाम की तरफ पहुंचेंगे, क्यों पता नहीं, लेकिन इस ब्रेक को, इस पोजीशन को देखते हुए मुझे नज़र आ रहा है कि अगर बिना कुछ गलती किए पॉकेटिंग होती रही तो ये फिर एक बार स्लैम के करीब पहुंच सकते हैं। देखिए मेरे ख्याल से यस, दिस इज द स्ट्रोक। ब्लैक को घुमाते हुए टच पर वाइट को खेलना था, उसी के बाद उन्हें स्लैम की पोजीशन आ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और किसी भी तरीके से
क्या बात है, लेकिन अभी भी सेफ पोजीशन नहीं है जैद को। ये मेरे हिसाब से तीनों कॉइन संदीप को पॉकेट होने जैसी है, लेकिन अब अगर बहुत ही अच्छी तरीके से खेला। और अब थोड़ा टेंशन ज़रूर होगा, क्योंकि क्या क्वीन के लिए खेलेंगे, क्योंकि अगर क्वीन खेलते हैं तो कवर के माध्यम में एक कॉइन है उनके लिए। चलिए हम थोड़े से ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वीन दिखाई देता है। क्या अटेम्प्ट करेंगे संदीप? देखिए अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट में उन्हें सफलता नहीं मिली। अब सोचने पे मजबूर किया है जैद को, डबल पंच का नहीं, क्वीन खेल लिया। देखिए कॉन्फिडेंट है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, कवर को भी खेल लिया। अब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ट्रिपल कनेक्शन के साथ कुछ करना चाहेंगे ज़रूर। बहुत रिस्क था, बहुत ही ज़्यादा रिस्क था, लेकिन खेल लिया। अगर सक्सेस होते तो तालियां बजती, नहीं है तो फिर तालियां बजेंगी ज़रूर, लेकिन संदीप के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए किसी ना किसी के लिए तो तालियां बजी, लेकिन जो अटेम्प्ट किया था कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि और एक चांस भी था जहां पर डबल ग्लांस कर सकते थे, और शायद मतलब पता नहीं है, बट मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा कि दो दिग्गज खिलाड़ी हैं, उनकी टेक्निक, उनकी थिंकिंग हमसे बहुत ज़्यादा है और इसलिए वो उस पोजीशन पे है। लेकिन जब खिलाड़ी अपने पोजीशन पे खेलता है, उस चेयर पे बैठता है, तो उसकी थिंकिंग जो खेल, उसका दिल जो कहता है, उसकी थिंकिंग जो कहती है, वही हिसाब से उनका खेल होता है। और हम तो सिर्फ न्यूट्रल कमेंटेटर है। तो फिर एक बार 5 ब्रेक के पश्चात स्कोर बोर्ड पे स्कोर देखिए, 2 या 3 से ही ज़्यादा लीड नहीं है यहाँ पर। 10-8 संदीप दिवे इज ऑन 10 पॉइंट्स, जहीद फारूकी 5 पॉइंट्स। और मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जहद का ब्रेक फेल होता हुआ, और यहाँ पर जितनी भी ओपन कॉइन्स है उसे पॉकेट करने की कोशिश है जैद द्वारा। यहाँ पर ज़रूर इस ब्लैक को थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करेंगे। क्या बात है, वाह फैंटास्टिक। इस चीज़ के लिए सच में परफेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक ही शॉट में 2 ब्लैक कॉइन्स को उन्होंने थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर दिया है। यहाँ पर देखिए कोशिश करेंगे कि एक कॉइन पॉकेट करके दूसरे को जोकर कॉइन में लेके आए, और उसी तरीके उन्होंने किया है, क्योंकि ये कॉइन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। शायद स्लैम की संभावना दिखती है, यहाँ पर स्लैम की बहुत ज़्यादा संभावना है, लेकिन अब थोड़ा टेंशन लग रहा है कि क्वीन अगर विदाउट टच पॉकेट होती है तो ही हो सकता है। स्लैम नहीं है, ये सेकंड टर्न है, माय मिस्टेक, लेकिन सेकंड टर्न फिनिश हो सकता है यहाँ पर। क्या बात है, यहाँ पर रेफरी को ही बोलना चाहिए। चलिए लास्ट कॉइन, और फिर एक बार तालियां। क्या बात है, 10 पॉइंट से इस बोर्ड को जीत लिया है जहीद ने, और पहुंच गए हैं 18। मैं अभी अभी बात कर रहा था कि 2 या 3 की ही लीड हो रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए 8 पॉइंट से लीड कर दी है जहीद फारूकी ने, और फिर एक बार अपना पगड़ा भारी करके रखा हुआ है। हम अगर देखते हैं कि 6 ब्रेक के पश्चात स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ नजर आता है। जहीद फारूकी फ्रॉम थाने इज ऑन 18 पॉइंट्स। संदीप दिवे जो प्रेजेंट
वर्ल्ड चैंपियन है वो 10 पॉइंट पे है और अब उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेलना होगा अगर थर्ड सेट के लिए खेलना है। क्या बात है, बहुत अच्छी तरीके से रिवर्स में खेला और कॉइन को पॉकेट किया है। अब शायद क्वीन के लिए ज़रूर जाएंगे। बहुत ज़्यादा ज़ोरों से खेल लिया क्योंकि कोई कवर, इजी कवर नज़र नहीं आता है। कोशिश तो ज़रूर करेंगे कवर के लिए, लेकिन अगर ट्रिपल कनेक्शन पास होता है तो, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। यहाँ पर देखिए यहाँ पर उन्होंने जो क्वीन खेला, थोड़े डेलिकेट हाथों से खेलते तो शायद कवर उन्हें मिल सकता था, लेकिन वैसा नहीं है। फिर एक बार करारा स्ट्रोक यहाँ पर, लेकिन फेवरेबल कंडीशन में कुछ नहीं आता हुआ। यहाँ पर जहर ज़रूर क्वीन को खेलेंगे। क्वीन को खेल लिया कवर के माध्यम में। इसी ब्लैक को खेलना सही होगा क्योंकि वैसे भी वो ब्लैक थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होकर बाजू में चले जानी वाली। अब कहीं ना कहीं जैद की कोशिश ये रहेगी कि जितनी भी पॉइंट्स है उसे ज़्यादा से ज़्यादा मैं जल्दी से जल्दी पॉकेट कर लूँ, अगर, क्योंकि ये ब्रेक बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए किस तरीके से एक एक कॉइन को रिलीज़ करते हुए फिनिश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जैद। बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल का प्रदर्शन, परफेक्शन का प्रदर्शन यहाँ पर नज़र आता हुआ। और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर फिर एक बार सिंगल कॉइन की कोशिश, इस कॉइन को भी खेल लिया और ये प्रेस अगर लगा तो या तो ब्लैक इजी हो सकती है या फिर डिफ़िकल्ट भी हो सकती है। देखना है क्या हो सकता है। क्या बात है, बेहतरीन प्रेस का या प्रयास। और लास्ट कॉइन है, अगर इस कॉइन को पॉकेट कर लिया तो विनर हो सकेंगे और सच में काबिले तारीफ। मतलब कोई चांस ही नहीं है संदीप को इस नंबर को कोशिश करने के बाद भी बेहतरीन तरीके से